ही देख रहे। शिट, प्रॉक्सिमिटी इज नॉट फ्रेंडशिप, वी हैव टू हैव अ बैकअप प्लान। टीचर के पास जाऊंगी, इसका मार कटवा के आऊंगी, मेरी मम्मी पापा नहीं देखने वाले मैं क्या कर रही है। डोंट डेट इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। मेरी तो चांस ही नहीं है, मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं इतना क्या भाषण दे रही हूँ। बट hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to my another video. So in this video I'm going to share with you some of my college advice that you really need. Going to be brutally honest. So yeah, let's get started. Did you guys notice some difference? Some difference though, you know, I got a haircut. So can you see? I love my haircut, like it's so good, and I just got my hair short because I no longer take care of my long hair. It's so much, and I literally have a crash out before I cut my hair because I was like, I don't want long hair. I don't want long hair anymore. I want my short hair, and yeah, I thrive in my short hair. So yeah, so good. I love it. And they give me some face trimming, and yeah, I just love it so much, and it just gives my face very much structure and all. So yeah, it's out of context, but you know what, ये मेरी चैनल है तो मैं कुछ भी बोलूँगी। Before I start my video, I will give you some context कि मुझे इसके बारे में इतनी सब ज्ञान कैसे पता है। I studied my 11th-12th in college. In Odisha, when we completed our 10th grade, we studied 11th-12th in our college. So we study college in a very earlier age. A few people, for them it's new because they studied after 12th, but I started going college in my 11th and 12th. So that's why I have 2 years experience. And still I am, you know, going to study my graduation in college also. So the points that I'm going to talk about, it's some of my experience, and it's some of that I see people that is happening in their life. And कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी सीखनी है। मैं दोबारा आके मेरी भी वीडियो देखूंगी क्योंकि मेरी भी कॉलेज स्टार्ट होने वाली है। Yeah, let's get started. The first point of my video, which is very important, don't go into college with expectation, go with curiosity. हमारी एक्सपेक्टेशन कहाँ से आती है? ये जो बॉलीवुड मूवी होती है, यू नो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मेरा हीरो, वहाँ पे हम सब देख के हमें भी लगता है कि ओ माय गॉड, मेरी कॉलेज लाइफ तो ऐसी होगी, मेरी कॉलेज लाइफ तो वैसी होगी। स्टॉप, नहीं होने वाली इतनी धमाकेदार, इतनी हैपनिंग। आई एम टेलिंग यू दिस विथ माई एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने तो इतनी बॉलीवुड की कीड़ा हूँ। मैं हर तरह की मूवी देखे गई थी कि ओ माय गॉड, मेरी कॉलेज में तो ये होगी, मेरी कॉलेज में तो ये होगी, कुछ नहीं। एंड मैं पढ़ी गर्ल्स कॉलेज में, तो द चांस इज नाउ हैव टू बी, यू नो, डूइंग एनीथिंग। आई एम लाइक शिट, इतने जो सारे मैं सपने सजा रही थी बचपन से, what I'm going to do right now, but you know what, it's more fun. Don't go with expectation because आपको लगेगा कि इतने सारी चीज़ें होने वाली है, but अगर नहीं होगा तो you will feel sad, you will feel demotivated to go to study in the college because at the end of the day आप पढ़ाई करने ही जा रहे हो, ठीक है। but go with curiosity, try every single thing. जो भी आपकी फ्रेशर्स हो रही है उस पर जाके पार्टिसिपेट करो, जो भी कंपटीशन हो रही है उस पर जाके पार्टिसिपेट करो, भी सोसाइटी वगैरह जो भी है ट्राई करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा छोड़ दो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको रहना ही है उसमें। यू कैन लिव दैट ग्रुप, बट प्लीज़ जस्ट सी कि कैसा क्या सिस्टम है, क्या है, कैसा क्या सिस्टम है वहाँ पे, एंड जस्ट ट्राई एवरीथिंग। बिकॉज आपको कोई नहीं बोलेगा कि तू ये क्यों करिए, तू वो क्यों करिए, तू पढ़ाई सिर्फ कर, ये कर, वो कर, बिकॉज दिस 3 years or 4 years of your life is going to change everything. You will be a better person after college, or a bad person after your college, I don't know, it depends on you. But yes, try every single thing because this is your only chance. So the second point is, you can start over and reinvent yourself the way you want. तो आप अगर स्कूल में इंट्रोवर्ट हो और आपको कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता, आप यू नो शाय से रहते हो, कॉलेज में आपको कोई नहीं जानता, लाइक लिटरली नोबडी नोज यू, एंड आप जाके वहाँ कुछ भी कर सकते हो और आपको कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, अरे तू तो चेंज होगी, अरे तू तो ये होगी, तू तो वो होगी। कोई नहीं बोलने वाला होगा कॉलेज में, बिकॉज कॉलेज में सब एक इंडिविजुअल होके आए हैं और हमको लगता है कि कॉलेज में सब हमको ही देख रहे, सब मैं तो यू नो मेरे को ही सब कुछ देख रहे। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है,
सब अपने दिमाग में यही सोचते हैं, सब कोई मेरे को देख रहा है, सब कोई मेरे को देख रहा है, बट कोई किसी को नहीं देख रहा है. सो दैट्स द ओनली पॉइंट. डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बी हु यू आर. अगर आपको लगता है कि मैं स्कूल लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं कर पाई, डू दैट राइट नाउ. दिस इज़ योर टाइम वेन यू कैन शाइन. किसी को भी नहीं पता आपके घर कहाँ पे है, आपके बैकग्राउंड कहाँ पे है, आपकी क्या, कुछ नहीं पता इन लोगों को. यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. यू कैन पोर्ट्रे योर सेल्फ एज यू वॉन्ट टू पीपल. सो या, बी दैट पर्सन. बी दैट पर्सन जो कि आपको लगता है आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन. बी दैट पर्सन राइट नाउ बिकॉज नो बडी नोज यू. And if you start behaving like this, you will be like that person. Third thing is, I'm going to say it out loud. This is a very controversial opinion, but not everyone is your friend. बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, not everyone is your friend. एक जो भी आपके बेंच पार्टनर है, जो भी आपको बुक्स मांगती है, जो भी आपके साथ कैंटीन जाती है खाना खाने के लिए, जो भी आपके साथ ऐसे टहलने के लिए बाहर जाती है, they're not your friend. फ्रेंडशिप एक ही होना चाहिए. तो फ्रेंडशिप का वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए सबके साथ. नो, हर फ्रेंडशिप की एक अलग अलग वैल्यू होती है. ओके, सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक्स और वाई. एक्स के साथ आप अपने कैरियर के बारे में डीप बातें, फ्यूचर, एम्बिशियस, ये बात सब करते हो. बट वाई के साथ आप मज़े मारते हो, लाइक वाइफ करते हो, आप हर बात उसको बताते हो, एंड डे टू डे लाइफ का बात आप वाई के साथ शेयर करते हो. ये मतलब नहीं है कि ये दोनों आपकी दोस्त नहीं है. ये मतलब है कि ये दोनों आपकी ज़िंदगी में एक डिफरेंट वैल्यू ऐड करते हैं. डोंट गो विथ एक्सपेक्टेशन कि मैं एक ही दोस्त बनाऊंगी और एक ही दोस्त को सब कुछ मैं शेयर करूंगी और वो मेरी सेम वैल्यू रखेगी. नो, ऐसा नहीं होता है. एक इंसान के ऊपर आप कितनी ही भार डाल दोगे, वो भी एक इंसान ही तो है ना. अगर आपके ऊपर हर प्रॉब्लम, हर ये वो अगर एक ही इंसान डालेगी एंड आप उसके लिए वो सेम तरह की वैल्यू आप अगर नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हो, so it's not your fault, it's not her fault, but you have to understand different people have different values in your life and you have to figure out that person and what's that person value is. Your friend circle can change your whole college experience. It's like I am telling you from my experience because I found this friendship 3-4 months after I get to know about them. Because मुझे नहीं पता था ये लोग कौन ही है, मुझे नहीं पता था. But after 3-4 months I just found them and they just became a big part of my life. So it's really important. Good friends can make your whole college experience everything, but bad friends can make your college experience really trash. So you just have to choose. अगर आपको फर्स्ट ईयर पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने दो. सेकेंड ईयर पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने दो. आपको फोर्थ ईयर पे भी मिल रहा है ना, एक ही दोस्त आपको मिल रहा है ना, उसको संभाल के रखो, ठीक है. डोंट बी अफ्रेड टू लीव दैट ग्रुप. अगर मैंने इस ग्रुप को छोड़ दिया तो मेरे साथ तो कोई दोस्त नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. हमारी फ्रेंडशिप अच्छी है, बट बाद में अगर कुछ हो सकता है तो आई एम प्रिपेयर्ड. आई विल लीव दैट पर्सन. लाइक peace over anything, bro. Peace over anything. So the fourth point is you will get to know about yourself so much in this years because hello, you will have so much experience in this all years and आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे. और ऐसा नहीं है कि आप मत करना चाहते हो, आपको करना पड़ेगा. लाइक सिचुएशन ही ऐसी होगी कि आपको करना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलने वाली है. एंड डोंट बी स्कैर्ड. लाइक यू कैन नो अबाउट योर सेल्फ सो मच. आपको पता चल जाएगा कि माय गॉड, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ यार, मुझे तो नहीं पता था यार. मैं गाना भी गा सकती हूँ यार, मुझे तो नहीं पता था यार. मैं आर्ट भी कर सकती हूँ, मुझे तो नहीं पता था. सो ऐसे ही होने वाला है आपके कॉलेज लाइफ में. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ट्राई एवरी सिंगल थिंग. फेल हो जाओगे, क्या हो जाएगा, आपकी क्या ही ऐसे इज्जत ऐसे चली जाएगी. कुछ नहीं होने वाला. कॉलेज में कोई किसी को नहीं जानता है. सो डोंट बी लाइक ओ माय गॉड, इसमें अगर मैं फेल हुई तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी. है क्या इज्जत, कौन आपको जानता है. आप फेल हो जाओगे. सो बी प्राउड दैट आपने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते. सो अगर आपने पार्टिसिपेट किया, आपको पता चला कि ओ माय गॉड ये सारी सिस्टम होती है, ये प्रोग्राम में ये सारे टीचर्स होते हैं, तो आपके कनेक्शन बनेंगे वहाँ पे. सो ऑलवेज ट्राई एवरीथिंग. द फिफ्थ पॉइंट इज नो वेयर टू से येस और नो. या ये थोड़ी सी डिलेमा बात होगी, बट मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है. एवरी टाइम गो विथ योर गट फीलिंग्स. आपको गट को पता है कि ये लड़की के लिए क्या अच्छी है, क्या बुरी है. सो गट फीलिंग इज जिंदाबाद. तो आपको समझ आ जाएगा. आप इतनी भी गधे नहीं हो कि आपको समझ नहीं आ जाएगा. अगर मुझे पता चल रहा है तो आपको भी पता चल ही जाएगा. थर्ड टाइम ये देखो कि अगर मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ
तो मेरे प्रॉस क्या होने वाला है और मेरे कॉन्स क्या होने वाला है। सो हर टाइम प्रॉस एंड कॉन्स के साथ ही चले जाओ, ऐसे आपकी 3-4 साल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉस एंड कॉन्स, मेरी क्या लाभ हो रही है, मेरी क्या क्षति हो रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ, मेरी क्या प्रॉफिट हो रही है, मेरी क्या लॉस हो रही है। सो मैं इसको देख के जाती हूँ। देखो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको डर लग रहा है, यू नो, इफ़ यू स्केर्ड कि ओ माय गॉड मैं तो नहीं कर पाऊँगी, ये जो कर पाऊँगी वर्ड आता है ना कि ओ माय गॉड ये तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से ये तो होगा नहीं, डू इट, डू इट। आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप इतने अच्छे उसमें कब हो। लिटरली आई एम टेलिंग यू, डू इट। येस और नो इतनी पावरफुल वर्ड्स होती है ना कि आप लोग मतलब उनसे कुछ भी कर सकते हो। तो मैं ये इसको तो बोल दिया, नो का मैं बोलती हूँ, यू नो योर लिमिट्स, आपको पता है आप कितनी हद तक जा सकते हो। एंड ऐसे मत बिहेव करो कि मैं तो अभी पिंजरे से खुली हूँ, मैं तो अभी सब कुछ कर लूँगी। आई नो ये हमारा टाइम है, बट इसके बाद भी लाइफ है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बी सेफ, बी सेफ, लाइक आई एम बेगिंग यू, बी सेफ। हर चीज़ एक लिमिट के साथ करो, एक कंट्रोल के साथ करो, हमको ही उसका कॉन्सिक्वेंसेस संभालनी पड़ेगी। सो वी हैव टू बी लिटिल माइंडफुल होना चाहिए कि ओके वी हैव टू बी दिस कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टरवर्ड्स, सो वी हैव टू यू नो कंट्रोल दिस थिंग्स। हमको करना चाहिए बट बी इन योर कंट्रोल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप ये मत करो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बी इन योर कंट्रोल, बी इन योर लिमिट्स, नो वेयर टू स्टॉप, know where to stop, there learn to say no. You understand what I'm saying? You getting my point? So yeah, so the 6th point is don't make college your entire personality. Have some hobbies outside. I know it will be difficult and you have to make your life difficult. किसको easy life चाहिए होता है? लेकिन मेरा तो ये फंडा है, मैं अगर खाली बैठ जाऊँ ना, मुझे तरह तरह की यू नो सारी ओवर थिंकिंग मैं कर चुकी होती हूँ एंड आई एम अ बिग ओवर थिंकर। तो मुझे खाली रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ सो बिजी, क्योंकि मुझे वो घड़िया बातें नहीं सुनी। तो भी अगर आपको कोई पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, मैं कॉलेज के इवेंट के लिए गई थी, इट इज़ नॉट योर पर्सनैलिटी, डोंट मेक कॉलेज योर होल पर्सनैलिटी, हैव सम डिफरेंट हॉबी। स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ, डांस कर लो, गाने गा लो, स्विमिंग करने चले जाओ, बहुत सारी हॉबीज़ है, लाइक कुछ कुछ करते रहना साइड बाय साइड। आई नो कॉलेज विल बी सो हेक्टिक फॉर everyone, for me also, but I will try and you will also try to get some time for ourselves and to try different hobbies. Promise me. कैसे promise करोगी? Promise me. Yeah, हम करेंगे। मैं इसी चैनल में बोलूँगी कि मैं क्या क्या हॉबी कर रही हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ठीक है। So the 7th point is don't date in your first year of college. Listen, आई नो इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स वेरी, आपको तो लगेगा भाई मेरी ज़िंदगी तो खुल ही गई, मैं तो ये यहाँ पे सब कुछ कर सकती हूँ, मेरी मम्मी पापा नहीं देखने वाले, मैं क्या कर रही हूँ। आई अंडरस्टैंड, मेरी तो कोई चांस ही नहीं है, मैं तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत ही करो, बट फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में यू आर देयर टू एक्सपीरियंस, यू आर देयर टू एक्सप्लोर। आपको नहीं पता आपके टीचर का नाम क्या है, आपको नहीं पता आपकी दोस्त कौन है, आपको नहीं पता किस कमिटी में क्या हो रहा है। तो आप फर्स्ट ईयर में ही एक लोगों को कैसे जान सकते हो कि स्टार्टेड डेटिंग हिम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ही हर एवरीवन, आई एम टॉकिंग फॉर एवरीवन, जो भी हो, लड़का हो लड़की हो, गिव योर टाइम टू योर सेल्फ। ये फर्स्ट ईयर आप खुद को टाइम दो, खुद को यू नो थोड़ा सा टाइम दो कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए टाइम दो। एक ही साल में इतनी सारी चीज़ मत भर दो कि oh God, अब मैं क्या करूँगी। Give some time to process what is happening surrounding by and then do whatever you want. So 8th point is don't compare your study progress to anyone else because सबका पढ़ाई का तरीका अलग अलग होता है। Like मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से, जो लोग मेरे साथ ही मज़े मारते हैं, मेरे साथ ही सब बकवास चीज़ें करते हैं, लाइक सब यू नो मज़े मस्ती सब करते हैं, दे गेट मोर मार्क्स। एंड जो लोग हर टाइम पढ़ाई करते रहते हैं, हर टाइम यू नो इस बुक में छापे रहते हैं, उन लोगों के कम मार्क्स आते हैं एंड मेरे जैसे सही मार्क्स आते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सबका तरीका अलग होता है। कोई लोग अच्छे आंसर्स लिखने में अच्छा होता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है, यू नो लाइट थोड़ी सी ये वो हो रही है बिकॉज धूप आ रही है जा रही है, तो इसीलिए थोड़ी सी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, बट प्लीज़ बेयर विद इट। एंड ये सब होता है। सो डोंट कंपेयर, यू कैन चेक कि जिसका मार्क्स अच्छा आ रहा है, कि टॉपर है कि जो भी है,
उसकी नोट्स आके देखो कि वो किस तरह से आंसर्स लिख रहा है, वो किस तरह से अपनी आंसर्स को प्रेजेंट कर रहा है, किसी किसी तरीके से उनको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. सो यू कैन डू दैट, बट डोंट बी सो कम्पिटिटिव कि यार इससे मेरे से कैसे मार्क आ गए, या अभी मैं इसको दिखाती हूँ, अभी मैं इसको खाते लेके टीचर के पास जाऊँगी, इसका मार्क कटवा के आऊँगी. chill. The ninth point is grades matter but connection matters too. Grades तो मैटर करते हैं बिकॉज हम उसी के लिए जा रहे हैं कॉलेज, हम उसी के लिए जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए. सो ग्रेड्स मैटर बट कनेक्शन मैटर. लाइक अगर आप कुछ इवेंट्स में जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, आप बातें कर लो बस. यू नो, आई स्ट्रगल विद दैट बिकॉज आई डोंट लाइक टू अप्रोच एनीवन. आई लाइक टू बी अप्रोच्ड. तो मेरे अंदर वो ईगो है, पता नहीं कहाँ से आ गई, मैं क्या अपने को 30 मार खान समझ रही हूँ, बट आई हैव दैट. मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा उसको चेंज करने में, बट अगर मैं चेंज कर सकती हूँ तो आप भी चेंज कर सकते हो. भी सारे आपको लोग दिख रहे हैं, टॉक टू देम. आपके सीनियर्स हो, टीचर्स हो, कनेक्शन मैटर करते हैं. लाइक मार्क्स वाइज, यू नो, आपको वो कुछ कुछ नोट्स दे देंगे, कुछ कुछ आइडियाज़ दे देंगे कि क्या करना चाहिए तुझे. वो आपको कभी कभी सही रास्ता भी दिखा देते हैं बिकॉज वो आपकी स्टेज को गुजर के जा चुके हैं ऑलरेडी. उनको पता है कि क्या होता है ये टाइम पे. सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. आई एम टेलिंग यू, आपका कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आएगा. आप आज क्या कर रहे हो वो दोबारा नहीं आएगा. तो इसीलिए हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करो. आप वीडियोस बना लो, वॉइस नोट्स बना लो, नोट्स में लिख लो कि आज क्या हो रहा है, सब कुछ कर लो. क्योंकि आप तरसोगे लिटरली, आप लिटरली सोचोगे यार मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने क्यों डॉक्यूमेंट नहीं किया, मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ बाद में. सो बाद में रिग्रेट करने के बजाय आप अभी से स्टार्ट कर दो. एंड अगर आपकी स्टोरेज इशू हो रही है मेरी तरह जिसका भी स्टोरेज प्रॉब्लम है उनके फ़ोन में, मेरे को ये वाले स्टोरेज दिखना चाहिए कमेंट सेक्शन में. सो मेरी भी स्टोरेज प्रॉब्लम है सबकी तरह. सो मैं क्या करती हूँ ना, ब्लॉक करके डाल देती हूँ अपनी यूट्यूब पे. आई नो इट्स फनी, लाइक मैं 10 साल बाद देख तो सकती हूँ मैं क्या करी थी उस टाइम पे. एंड आई विल, यू नो, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि मैं क्या करी थी अपने कॉलेज लाइफ में. इट विल बी सो फन. कि स्टोरेज इशू है, डॉक्यूमेंट करो. यूट्यूब में एक है प्राइवेट करके, उसको पोस्ट कर दो. कोई नहीं देखने वाला होता है, आपके लिए वो है. प्राइवेट करके पोस्ट कर दो. आपकी स्टोरेज को स्टोरेज भी बच जाएगी, आपकी मेमोरीज को मेमोरीज भी रह जाएगी. सो या डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल थिंग. You will thank me later. You will literally thank me later. So yeah, that's it for this video. बहुत सारे ज्ञान दे दी मैंने. It's going to be a surreal feeling to start college life. I know it will be so hectic, so happening for us, but I know it will be going so good. मैं खुद को भी बोल रही हूँ, यूनिवर्स में वीडियो में बोल रही हूँ कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है एंड एवरीवन विल गेट देयर हैप्पी कॉलेज लाइफ. मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं भी इसमें कुछ आइडियाज़ लेने वाली हूँ बिकॉज मेरी भी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है. तो मैं भी इस वीडियो में आके क्लिक करके देखूँगी, अरे मैंने क्या बोला था, अच्छा ये चीज़ मुझे करना चाहिए अपने कॉलेज लाइफ के बारे में जब मैं demotivate हो जाऊंगी. Yeah, that's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Bye. I love you guys so much. I will see you in my next video. Mwah.